اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شتربان نہتے تھے، ابھی چھاپا مار اور شبخون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے یہ 21 آدمی پہلے چھاپا مار تھے یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شبخون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے۔ اس وار کرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شبخون اور چھاپوں کی نہیں سوچی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے، سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے، اسی لیے فوجوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے دوبارہ رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اسے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی، ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں، گھوڑے الگ بندھے ہیں، شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں، سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں، شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھی، کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔ چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان گھبرا اور ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا، بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دیں۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے اور 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں، بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے۔ راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھیں، آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے تھے، ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا۔ موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ بالیان بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ وہ بولا، کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ موبی نے کہا، کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ تم نے صلیب کے ساتھ دوستی کیوں کی ہے؟ بالیان نے کہا، صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ موبی نے کہا، میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ بالیان نے کہا، میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے پلانے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔
उसने कहा, तुमने अपनी इस्मत मुझसे नहीं लुटाई बल्कि मेरी इस्मत लूटी है। मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। लड़की ने कहा, एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए इस्मत कोई ज्यादा कीमत नहीं। मैंने तुम्हारी इस्मत नहीं लूटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है। मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें अपना मुस्तकबिल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। बालियान ने कहा, मैं उस रोशनी में नहीं जाऊंगा। मूबी ने कहा, देखो बालियान, मर्द जंगजू मर्द वादे और सौदे से फिरा नहीं करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनिकाही बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा न दो। बालियान ने कहा, तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकिबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मूवी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहो। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नाम लेवा है। मैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिस्र और सूडान कुर्बान कर सकता हूँ। उसके अजीम और मुकद्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मूबी ने कहा, मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो। एक शराब, दूसरे रात भर जागना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बालियान बोला, मैं किसी फाहिशा सलीबी का खावंद नहीं हो सकता। उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। उसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दौड़ते हुए आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी हैं। इन्हें वापस काहिरा ले चलो। एक ने हैरान होकर कहा, काहिरा? आप काहिरा जाना चाहते हैं? उसने कहा, हाँ काहिरा। हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस रेगिस्तान में कब तक भटकते रहोगे? कहाँ जाओगे? चलो घोड़ों पर जीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो। सहरा में ऊंट का सफर बेआवाज़े पा होता है। घोड़ों के टापों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऊंट के पांव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज भी पैदा नहीं होती। बालियान जिस वक्त मूबी के साथ बातें कर रहा था, उसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊंट एक छोटे से रेतीले टीले की ओट में खड़ा उन दोनों को और 6 लड़कियों को और 6 आदमियों को देख रहा है। वो सलीबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। उस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बालियान के डेरे से तकरीबन निस्फ मील दूर उसने पड़ाव किया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका शिकार उससे निस्फ मील दूर है। उसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को ये ड्यूटी दी थी कि वो ऊंटों पर सवार होकर दूर दूर तक घुमाएं और जहां उन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज नजर आए आकर इत्तला दें। इस काम के लिए ऊंट ही मौजूद सवारी थी, क्योंकि उसके पांव की आवाज नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ समतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए निहायत अच्छा था। इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शुतर सवार को रोशनी सी नजर आई तो वो उस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी सी मशल थी जो बालियान के आरजी कैंप में जल रही थी। शुतर सवार आगे गया तो एक टीले के पीछे हो गया। ये उतना ही ऊंचा था कि ऊंट पर सवार होकर आगे देखा जा सकता था। ऊंट और सवार उसके पीछे छुप गए थे। उसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बालियान के फौजी दस्तों के साथ गपशप लगा रही थी। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। जरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। उनमें वो घोड़े भी थे जो उन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। सलीबी शुतर सवार ने ऊंट को मोड़ा, कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊंट दौड़ा दिया। ऊंट के लिए निस्फ मील का फासला कुछ भी नहीं था। सवार ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई कि शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी जाया न किया। शुतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों के कदमों की आवाज से शिकार के चौकन्ना हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बालियान के डेरे तक पहुंची, बालियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की को घोड़े की पीठ पर बांध दो। उसके दोस्त हैरतज़दा होकर बालियान को देख रहे थे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने उसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त जाया होता रहा। बालियान ने उन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया कि वो जो कुछ कह रहा है होश ठिकाने रख कर कह रहा है और काहिरा चले जाने में ही मसलहत और आफियत है। लड़कियां परेशानी के आलम में उसे देख रही थीं। बालियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीने डाली और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बालियान ने बुलंद आवाज से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं।
लड़कियों को काहिरा ले जा रहे हैं। वो हमलावरों को सुल्तान अयूबी के फौजी समझ रहा था, लेकिन एक खंजर ने उसके दिल में उतरकर उसे खामोश कर दिया। उसके दोस्त इतने ज्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके, संभलने से पहले ही खत्म हो गए। सलीबियों का छापा कामयाब था, लड़कियां आजाद हो चुकी थीं। छापामार उन्हें फौरन अपनी जगह ले गए। उन्होंने कमांडर को पहचान लिया, वो भी उनकी पार्टी का जासूस था। उन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सुल्तान अयूबी के भेजे हुए सवार उस जगह से अभी दूर थे जहां से कैदी लड़कियां बालियान के आदमियों ने रिहा करवाई थीं। रात को भी चले जा रहे थे। वो ताक़ुब में वक्त नहीं जाया करना चाहते थे। रहनुमा उनके साथ था, वो रास्ता और जगह भूला नहीं था। वो उन्हें उस जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक मशल जलाकर देखा गया, वहां रॉबिन और उसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थीं। ये चीरी फाड़ी और खाई हुई थीं। उस वक्त भी सहराई लोमड़ियां और गीदड़ उन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक्त उन्हें गिद्ध खाते रहे थे। मुहाफिज अपने कमांडर को उस जगह ले गया जहां से उसने घोड़ा खोला था। वहां से मशल की रोशनी में जमीन देखी गई। घोड़ों के कदमों के निशान नजर आ रहे थे और समत की निशानदही कर रहे थे जिधर ये गए थे, मगर रात के वक्त उन निशानों को देख देख कर चलना बहुत मुश्किल था। वक्त जाया होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं कयाम किया गया। सलीबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि शहर की तारीकी में बहीरे रोम की तरफ रवाना हो जाएंगे। उस वक्त मैग्नाना मारियूस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, सुल्तान अयूबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे काहिरा चले जाते। अब वो काहिरा से बहुत दूर हैं, इसलिए कत्ल की मुहिम खत्म की जाती है। मैग्नाना मारियूस ने कहा, ये मेरी मुहिम है जिसे मौत के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करने का हल्फ उठाया था। मुझे एक साथी और एक लड़की की जरूरत है। कमांडर ने कहा, यह फैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। सब पर फर्ज है कि मेरा हुक्म माने। मैग्नाना मारियूस ने कहा, मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने उसे डांट दिया। मैग्नाना मारियूस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सौंप ली। उनके साथ ही दरमियान में आ गए। मैग्नाना मारियूस ने कहा, मैं खुदा का धुतकारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफी के दरमियान भटक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में क्यों भेजा गया था? 5 साल गुजरे, मेरी एक बहन जिसकी उम्र 16 साल थी अगवा कर ली गई। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बाप मर चुका है, माँ अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मुशक्कत करके मैं उन सब का पेट पालता था। मैंने गिरजे में सलीब पर लटके हुए यसू मसीह के बुत से बहुत दफा पूछा था कि मैं गरीब क्यों हूँ। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दयानतदारी से इतनी मेहनत करता हूँ, मगर मेरे कुंबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी माँ को खुदा ने क्यों अंधा किया? यसू मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और जब कुंवारी बहन अगवा हो गई तो मैंने गिरजे में जाकर कुंवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कुंवारी बहन के कुंवारेपन पर तुझे तरस क्यों ना आया? वो मासूम थी, उस पर खुदा ने ये जुल्म किया था कि उसे खूबसूरती दे दी। मुझे यसू मसीह ने भी कोई जवाब न दिया। मुझे कुंवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन उस अमीर आदमी के घर में है। वो अय्याश आदमी है, लड़कियों को अगवा करता है, थोड़े दिन उनके साथ खेलता है और उन्हें कहीं गायब कर देता है। लेकिन वो आदमी बादशाह के दरबार में बैठता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने उसे रुतबे की तलवार दी है। गुनाहगार होते हुए खुदा उस पर खुश है। दुनिया का कानून उसके हाथ में खिलौना है। मैं उसके घर गया और अपनी बहन वापस मांगी। उसने मुझे धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया। मैं फिर गिरजे में गया, यसू मसीह के बुत और कुंवारी मरियम की तस्वीर के आगे रोया, खुदा को पुकारा। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं गिरजे में अकेला था। पादरी आ गया, उसने मुझे डांट कर गिरजे से निकाल दिया। कहने लगा, यहाँ से 2 तस्वीरें चोरी हो चुकी हैं, निकल जाओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, क्या ये खुदा का घर नहीं है? उसने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछे बगैर खुदा के घर में कैसे आए? अगर गुनाहों की माफी मांगनी है तो मेरे पास आओ, अपना गुनाह बयान करो, मैं खुदा से कहूंगा कि तुम्हें बख्श दे। तुम खुदा से बराह रास्त कोई बात नहीं कर सकते। जाओ, यहाँ से निकल जाओ। और मेरे दोस्तों, मुझे खुदा के घर से निकाल दिया गया। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था कि सब पर सन्नाटा तारी हो गया। लड़कियों के आंसू निकल आए। सहरा की रात के सुकूत में उसकी बातों का तासुर सब पर तिलस्म बनकर तारी हो गया। वो कह रहा था,
मैं पादरी को, यसु मसीह के बुत को, कुंवारी मरियम की तस्वीर को और उस खुदा को जो मुझे गिरजे में नजर नहीं आया शक की नजरों से देखता निकल आया। घर गया तो अंधी माँ ने पूछा मेरी बच्ची आई या नहीं। मेरी बीवी ने पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा। मैं भी बुत और तस्वीर की तरह चुप रहा, मगर मेरे अंदर से एक तूफान उठा और मैं बाहर निकल गया। मैं सारा दिन घूमता फिरता रहा। शाम के वक्त मैंने एक खंजर खरीदा और दरिया के किनारे टहलता रहा। रात अंधेरी हो गई और बहुत देर के बाद मैं एक तरफ चल पड़ा। मुझे उस महल की बत्तियां नजर आईं जहां मेरी बहन कैद थी। मैं बहुत तेज चल पड़ा और उस महल के पिछवाड़े चला गया। मैं इतना चालाक और होशियार आदमी नहीं था, लेकिन मुझ में चालाकी आ गई। मैं पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। महल के किसी कमरे में शोर शराबा था, शायद कुछ लोग शराब पी रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो एक नौकर ने मुझे रोका। मैंने खंजर उसके सीने पर रखा और अपनी बहन का नाम बताकर पूछा कि वो कहाँ है। नौकर मुझे अंदर की सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक कमरे में दाखिल करके कहा कि यहाँ है। मैं अंदर गया तो मेरे पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरा खाली था। दरवाजा खुला और बहुत से लोग अंदर आ गए। उनके पास तलवारें और डंडे थे। मैंने कमरे की चीजें उठा कर उन पर फेंकनी शुरू कर दी। बहुत तोड़फोड़ की, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे मारा पीटा। मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मेरे खिलाफ इल्जाम ये थे कि मैंने डाका डाला, बादशाह के दरबारी का घर बर्बाद किया और 3 आदमियों को कत्ल की नीयत से जख्मी किया। मेरी फरियाद किसी ने न सुनी और मुझे 30 साल सजाए कैद देकर कैद खाने के जहन्नम में फेंक दिया गया। अभी 5 साल पूरे हुए हैं। मैं इंसान नहीं रहा। तुम कैद खाने की सख्तियां नहीं जानते। दिन के वक्त मवेशियों जैसा काम लेते हैं और रात को कुत्तों की तरह जंजीर डालकर कोठरियों में बंद कर देते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी अंधी माँ जिंदा है या मर चुकी है। बीवी बच्चों का भी कुछ पता नहीं था। मुझे खतरनाक डाकू समझकर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मैं हर वक्त सोचता रहता था कि खुदा सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। सुना था कि खुदा बेगुनाहों को सजा नहीं देता, मगर मुझे खुदा ने किस गुनाह की सजा दी थी? मेरे बच्चों को किस गुनाह की सजा दी थी? मैं 5 साल इसी उलझन में मुब्तला रहा। कुछ दिन गुजरे। फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो इस काम के लिए जिस पर हम आए हुए हैं आदमी तलाश कर रहे थे। मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बादशाहों के लड़ाई झगड़े थे। मुझे किसी बादशाह के साथ दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब मैंने सुना कि चंद एक ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आजाद करवाना है तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिल नफरत कौम है। मैंने ये इरादा किया कि मैं ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आजाद कराऊंगा तो खुदा अगर सच्चा है तो मेरी बहन को उस जालिम ईसाई के पंजे से छुड़ा देगा। फिर फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है तो मैंने उसे जजा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने कुंबे को दे सकूं। उन्होंने रकम देने का वादा किया और ये भी कहा कि अगर तुम समंदर पार मारे गए तो तुम्हारे कुंबे को इतनी ज्यादा रकम दी जाएगी कि सारी उम्र के लिए वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, ये 2 मेरे साथ कैद खाने में थे। इन्होंने भी अपने आप को पेश कर दिया। हमसे सैकड़ों बातें पूछी गईं। हम तीनों ने उन्हें यकीन दिला दिया कि हम अपनी कौम और अपने मजहब को धोखा नहीं देंगे। मैंने दरअसल अपने कुंबे के लिए अपनी जान फरोख्त कर दी है। कैद खाने से निकालने से पहले एक पादरी ने हमें बताया कि मुसलमानों का कत्ल तमाम गुनाह बख्शवा देता है और ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आजाद करवाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। मैंने पादरी से पूछा कि खुदा कहाँ है। उसने जो जवाब दिया उससे मेरी तसल्ली न हुई। मैंने सलीब पर हाथ रख कर हल्फ उठाया। हमें बाहर निकाला गया। मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे अपना हल्फ पूरा करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा खुदा कहाँ है। क्या एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करके खुदा नजर आ जाएगा? कमांडर ने कहा, तुम पागल हो। तुमने जितनी बातें की हैं उनमें मुझे अक्ल की जरा सी बू भी नहीं आई। उसके एक साथी ने कहा, इसने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं इसका साथ दूंगा। मैग्नाना मारियुस ने लड़कियों की तरफ देख कर कहा, मुझे एक लड़की की जरूरत है। मैं लड़की की जान और इज्जत का जिम्मेदार हूँ। लड़की के बगैर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी तक नहीं पहुँच सकूंगा। मैं जब से आया हूँ सोच रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ तन्हाई में किस तरह मिल सकता हूँ। मोबी उठकर उसके साथ जा खड़ी हुई और बोली, मैं इसके साथ जाऊंगी। कमांडर ने कहा, हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आजाद करवा कर लाए हैं मोबी। मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मोबी ने कहा, मुझे अपनी इस्मत का इंतकाम लेना है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की ख्वाबगाह में आसानी से दाखिल हो सकती हूँ। मुझे मालूम है कि मुसलमानों का रुतबा जितना ऊंचा होता है वो खूबसूरत लड़कियों का उतना ही ज्यादा शैदाई हो जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को महसूस तक ना होगा कि वो अपनी जिंदगी में आखिरी लड़की देख रहा है। बहुत देर की बहस और तकरार के बाद मैग्नाना मारियुस अपने एक साथी और मोबी के साथ अपनी पार्टी से रुखसत हुआ। सबने उन्हें दुआओं के साथ अलविदा कहा
उन्होंने 2 ऊंट लिए, एक पर मोबी सवार हुई और दूसरे पर दोनों मर्द। उनके पास मिस्र के सिक्के थे और सोने की अशरफियां भी। दोनों मर्दों ने चुगे ओढ़ लिए थे। मैग्नाना मारियूस की दाढ़ी खासी लंबी हो गई थी। कैद खाने में धूप में मुशक्कत कर करके उसका रंग इटली के बाशिंदों की तरह गोरा नहीं रहा था, स्याही माइल हो गया था। इससे उस पर यह शक नहीं किया जा सकता था कि वो यूरोपीय है। बेस बदलने के लिए उन्हें कपड़े देकर भेजा गया था, मगर एक रुकावट थी जिसका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था। वो ये कि मैग्नाना मारियूस इटली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानता था। मोबी मिस्र की जबान बोल सकती थी। दूसरा जो आदमी उनके साथ गया था वो भी मिस्र की जबान नहीं जानता था। उन्हें इसका कोई इलाज करना था। वो रात को ही चल पड़े। मोबी रास्ते से वाकिफ हो चुकी थी। वो काहिरा ही से आई थी। मैग्नाना मारियूस ने उस पर भी एक चुगा डाल दिया और उसके सर पर दुपट्टे की तरह चादर ओढ़ा दी। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।